کیا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ چند ہزار کا جتھا جو ہے وہ 22-24 کروڑ عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اور 9 مئی کو ہم نے دیکھا کس طرح جنا ہاؤس کو جلایا گیا، کس طرح جی ایچ کو پر جتھوں نے حملہ کیا، ہماری دفاعی علامات کو مسمار کیا گیا، جہاز کو جلا دیا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں میاں والی میں اور سرگودا میں ایئر بیسز پر دھاوا۔ مجھے آپ صرف اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کون سے لوگ ہیں جو پاکستان کا وقار، پاکستان کی شان، شہیدوں کی سرزمین پر کیپٹن شیر خان جو کارگل کا شیر تھا اور ہے، جو کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اس کے مجسمے کو توڑا گیا۔ اور مجھے یہاں پر کہنے دیجیے کہ میں خود سوچتا ہوں، میری بھی ایک بیٹی ہے، جب شہید کی موت صبح ناشتے کی میز پر شہید کے بچوں کو اس کے باپ کی داستان سناتی ہے اور سامنے شہید بیٹے کی تصویر لگی ہوتی ہے دیوار پر، وہ روز جیتی ہے، روز مرتی ہے۔ تو عمران نیازی، آپ نے ان شہید کی ماؤں کے دل توڑے ہیں، ان کو آپ نے زخمی کیا ہے۔ اس لیے 9 مئی ہمیشہ ایک سیاہ دن کے مادے سے یاد رکھا جائے گا۔ یہی فرق ہے فتنے فساد میں اور ملک کی ترقی میں۔ مہینہ ایک ہی ہے، مئی کا 9 مئی کو ان عزائم کو پورا کیا گیا جو آج تک 69 سال میں دشمن نہ کر سکا۔ اور ہمسایہ ملک میں پاکستان کے وقار کا تماشا بنتا ہے 9 مئی کو، جب یہ جلاؤ گھراؤ چل رہا تھا، ریڈیو پاکستان چل رہا تھا، جس نے تاریخی کردار ادا کیا پاکستان کے اندر۔ ایک 9 مئی اور ایک 28 مئی، اسی مہینے میں ذوالفقار بھٹو صاحب نے ایٹمی قوت کی بنیاد رکھی، اور نواز شریف صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے 28 مئی کو اس ملک کو ناقابل تسلیم بنا کر ایٹمی قوت ہونے کا تحفہ دیا، جس سے پوری عالم اسلام جو ہے ان کو فخر۔ تو میرے پاکستانی بھائیوں بہنوں، انشاءاللہ یہ ملک قیامت تک قائم و دائم رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، جو قومیں اپنے گھوسلوں کی عزت نہیں کرتی، جو اپنے شہداء کے وقار کا خیال نہیں کرتی، وہ کبھی فتح نہیں پاتی۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ چند ہزار کا جتھا کروڑوں عوام کے جذبات کا کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو لوگ ان حملوں میں شامل ہیں ان کو کیفیت اقدار تک پہنچایا جائے، قرار نوکری سنا دی جائے۔ اور میں اس بات کا حامی ہوں، میں بھی 22 سال سے کارکن ہوں، ہم نے تو گرفتاریاں بھی دی، ہمارے قائدین نے گرفتاریاں دی، ہم نے تو کبھی اپنی دفاعی علامات پر حملہ نہیں کیا، ہم نے تو کبھی جی ایچ او پر دھاوا نہیں پڑا، ہم نے تو کبھی دشمن کو یہ موقع فراہم نہیں کیا کہ جو کام دشمن نہ کر سکا وہ آج
चंद हजार के जत्थों में कर दिए। इसलिए इमरान नियाजी की फसाद की फितना की सियासत को, अगर इसका नाम सियासत है तो इस सियासत को खत्म करना कौन जिम्मेदारी है। और मैं ये जरूर कहूँगा, जिस तरह 28 मई की अहमियत हमेशा से उजागर की जाती है कि उस दिन पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्लीम हुआ, उसी तरह ये 9 मई का दिन भी जो है एक स्याह बात की हैसियत से इसको उजागर किया जाए कि कौन से धंधों ने, कौन से फसादी टोलों में सिर्फ चंद हजार और मबनी था, उसने इस मुल्क को 9 मई के दिन जो है खुदा न खास्ता नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश। पुलिस रेंजर्स अफवाज पर पत्थर बरसाए गए और आज मुझे याद आ गया, ये कहते थे कि हम धरना देना चाहते हैं। पुलिस कांस्टेबल कमाल अहमद जिस पे इन्होंने हंसी उड़ाई, जिसकी शहादत पर आज भी मुझे याद है कि उस शहीद का बेटा, 6 साल का बेटा मेरे साथ खड़ा था और शहीद की मैयत सामने पड़ी थी। जब तक जनाजा पढ़ा जाता रहा उसकी सिसकियां जो थी मेरे कानों में, उसकी आवाज आती रही। आज भी मैं सोचता हूं तो मेरा दिल कांपता है कि जो लोग इस मुल्क और कौम के लिए, चाहे वो फौजी हैं, रेंजर्स हैं, पुलिस वाले हैं, अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, उन यतीमों की दिल पर क्या बीती होगी, उसको भी आप अपने ज़हन में लेके आए, क्योंकि आप भी बाप हैं, आप भी माँ हैं, आपके भी जज्बात हैं। इसलिए मेरी दुआ है आज के दिन कि अल्लाह ताला उन माओं के दिलों को ठंडक अता फरमाए, उन शहीदों की माओं को सब्र अता फरमाए और हमें मिन हैसिल कौम तौफीक अता फरमाए। ये कौमी जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने ये खिलवाड़ किया 9 मई के दिन, जो भी इसमें कार्रवाई में शामिल हैं, उनको कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाए, ताकि कभी कोई पाकिस्तान की सलामती के साथ खेल खेलने की कोशिश ना करे। ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो ये इत्तेहादी हुकूमत जिसमें मुस्लिम लीग नून का कलीदी किरदार है, अपनी कौमी जिम्मेदारी से उदा बरा होगी। हटाया गया, ये चीजें साबित हुई वक्त के साथ, ऑडियो लीक्स निकली कि अदलिया और पीटीआई और जो परवेज की मिली भगत से आपकी हुकूमत को हटाया गया जो चल रही थी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अब तो ये किस्सा जुबान रद्द-ए-आम है। जिन लोगों ने ये एक आईनी हुकूमत के खिलाफ साजिश की वो खुद मान गए। और मैं ये भी कहता चलूं, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ। जब वोट कास्ट ही नहीं हुआ तो आप कैसे आइन की जो रूह है, जो स्पिरिट है, उसकी तशरीह आप कैसे गलत कर सकते हैं? ये तो आइन की तशरीह नहीं है। आपने आइन को दोबारा अपने हाथों से लिखा है सिर्फ अपने अज़ाइम के लिए कि अगर किसी की शक्ल आपको अच्छी नहीं लगती, कोई जमात आपको अच्छी लगती, किसी से आपको बहुत प्यार है, जिसको आप कहते हैं वेरी गुड टू सी यू मिस्टर इमरान खान, तो कौन नहीं बोलेगी ये बातें? इमरान खान कोई जंगी महाज पर जीत के आ रहा था, 190 मिलियन का खबर किया पाउंड का, पुलिस का नहीं, उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट में। तो कौन ने देखा ये उन्हीं का शाह खजाना है। इंशाअल्लाह सच सामने आता है और मुझे कोई दुख नहीं है, तमाम गवाह है। जो चंद महीने में मैंने अल्लाह के फजल करम से, मेरी कोई औकात नहीं है, अल्लाह ने तौफीक दी, हमने सस्ता आटा पूरे पंजाब में तकसीम किया, पूरे
सूबे की 12 करोड़ आवाम को मुफ्त दवाइयाँ, उसमें कैंसर की दवाइयाँ शामिल हैं, हमने उनको फराहम की। और हम एक बहुत शानदार मंसूबा, जो आज बिजली के बिल जो हैं वो IMF की वजह से हमें महंगे करने पड़ते हैं, लोगों के घरों में क़यामत आती है हर महीने, हमने 100 यूनिट वाले जो घरेलू सार्वजनिक थे उनके लिए मुफ्त बिजली का हमने अपना मंसूबा लेके आए थे। लेकिन उस पर अमल भी इन्हीं कानून के रखवालों ने रोक दिया। वो मेरा मंसूबा नहीं था, वो तो आवाम का मंसूबा था। तो इसलिए जो ज्यादतियाँ हुई हैं, अल्लाह की कुदरत उसका अजाला करेगी और हक़ाइक़ कौम के सामने। नून लीग जो है वो लाहौर का गढ़ समझी जाती थी कि लाहौर नून लीग का है, लेकिन आप एक लंबे अरसे से खामोश है मुकम्मल तौर पर, उसकी वजह से बड़ी खामोशी के बाद आप सामने आए, तो उसके बाद दोबारा खलवत में चले जाएंगे या किरदार अदा करेंगे जो आपकी मुश्किलात में? उसका जवाब मुझसे ये है कि कभी कभी खामोशी की आवाज़ हुआ करती है। और जब मैं वज़ीर आला था, उस वक्त की तकरीर निकाल के देख लिया, मैं कहता था कि मुझे वज़ीर आला होने पर फख्र नहीं, मुझे पार्टी के कारकुन होने पर फख्र है। मेरा रिश्ता इन कारकुनों के साथ एक नाज़वान रिश्ता है और ये रिश्ता हमेशा मरते दम तक अपने कारकुनों से निभाता है। किया और उसमें पंजाब तहरीक इंसाफ का नाम आ रहा है, क्या ऐसी जमात पर पाबंदी लगनी चाहिए ताकि ऐसा एक मिसाल बने कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी सोच या अप्रोच को अप्लाई न करे? मैंने इस पर कोई तफसीली गुफ्तगू की है। ऐसे लोग ये सियासी जमात नहीं हो सकती, उनको करारवा की सलाह मिलनी चाहिए और अभी आहिस्ता आहिस्ता हक़ाइक़ खुलेंगे। अब आप ये देख लें दोगलेपन की मिसाल, एक शख्स जब हुकूमत चली गई तो कहता था अमेरिका ने साजिश की, ये कहता था इमरान खान, आज कहता है कि अमेरिका मुझे बचा लो। तो कभी अल्लाह से लड़के देखो, अल्लाह से खौफ करो कि मुझे हर सेकंड बाद झूठ बोलने की जरूरत की सजा मिलनी चाहिए। इस तरह से क्या वफाकी जो हुकूमत है आपकी वो भी डिटर्मिन है सजा देने में या नहीं? मैंने कहा कि ये वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, मिन हैसल कौम भी हमारी जिम्मेदारी है। आप भी अपने बच्चों को शहीदों की दास्तानें सुनाते होंगे जो उन्होंने एक तारीख खत्म की है इस मुल्क और कौम के लिए। आज भी छातों पर अपने बच्चों से दूर, अपनी बीवी अपनी माँ से दूर, अपने प्यारों से दूर, हर हिफाजत के लिए अपनी जान और कुर्बानी करते हैं।